Hello everyone, a very good evening to you all. Good evening. Good evening, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Okay, fine, thank you. In my last class, I have shown you this one. Yes or not? This one I have shown you, but little bit explanation is required. It was left. Okay, so let me explain you. No talking. Now, capacity of parties. Already this one I have explained you. The thing is that you know that minor child is not eligible for entering a contract. Okay? Then the unsound mind is not eligible. Okay? Unsound mind consists of two parts, idiot and lunatic. Okay? So they both are not eligible for entering into a valid contract. Next one, insolvent. Okay? Insolvent means an individual who is unable to pay his debts. Okay? But इन जो इंसॉल्वेंट पर्सन है वो इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है? अगर एक उसके कोई उस मतलब उसके बदले कोई दूसरा कोई कंपनी हो ये हो तो दैट वन कैन नॉट बी अ इंसॉल्वेंट. ओके, दैट इज एलिजिबल फॉर एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, ठीक है? नेक्स्ट, कन्विक्टेड. सो कन्विक्टेड मीन्स punished, means he is under the prison, he is inside the prison. Okay, but if he will come out from the prison, if his imprisonment will be finished, completed, suppose किसी ने मर्डर किया बा किसी ने कुछ भी क्राइम किया, उसका 2 years 3 years जेल हो गया, imprisonment हो गया, and after 2 or 3 years if he will come back to the society, okay, तो he or she will be eligible for a entering into a valid contract. Okay? लेकिन जब तक वो कन्विक्टेड है, जैसे कोर्ट ने उसको पनिश किया, कोर्ट ने उस जजमेंट अपना सुना दिया कि आज से he will be inside the prison. ओके, तब तक जब तक वो अंदर है तब तक वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, फाइन. अगर ऐसा हुआ कि केस चल रहा है, ठीक है, केस चल रहा है लेकिन अभी तक जज ने डिसीजन मतलब नहीं दिया है, जजमेंट नहीं सुनाया है, बट वो उसका ट्रायल चल रहा है, ठीक है, उसका तब दैट टाइम ऑल्सो ही विल बी एलिजिबल फॉर एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जब तक वो बाहर है वो एलिजिबल है, जब वो अंदर चला जाएगा देन ही विल नॉट बी एलिजिबल. इज इट क्लियर फॉर कन्विक्शन? ठीक है. नाउ मैरिड वुमेन, that day I also told you, married woman is eligible for a valid contract. Yes, married woman is eligible, but इसमें भी कुछ क्या है, exceptions है. जैसे married woman, suppose I am a married woman, ठीक है, I can enter into a contract, अगर वो मेरा personal property है. If it is my personal property, suppose I have purchased a flat in my own name. If I want to sell that property, if I want to sell my property, स्त्री धन जो जिसको बोलते हैं, तो वो मैं सेल कर सकती हूँ. That one I cannot go for a, that one I can go for a valid contract. Okay, I can enter into a contract. ठीक है, but suppose मेरा हस्बैंड का कुछ प्रॉपर्टी है, मेरे हस्बैंड का कोई प्रॉपर्टी है, तो मेरा हस्बैंड का प्रॉपर्टी को मैं खुद अगर सेल करना चाहती हूँ, मैं खुद कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, दैट वन फॉर दैट आई एम नॉट एलिजिबल. इज इट क्लियर?
Okay, I am my husband's agent. Definitely I am my husband's agent, but I cannot sell my husband's property. Okay, ठीक है, मैं सेल नहीं कर सकती हूँ, उसके नाम से मैं सेल नहीं कर सकती हूँ. Is it clear? Okay, सब समझ में आ गया ना? So that is in case of married woman. Fine. Now, alien enemy. What is called alien enemy? Kiran? I come in the front. Don't sit in the bank. Sit. चलो आ जाओ, पीछे क्यों बैठे हो? आगे आओ. आओ. Come in the front. पीछे क्या लेना देना? Back bencher. No, not at all. Come in the front. Okay, now, alien enemy means, what is this? कोई भी बाहर का कंट्री जिसके साथ हम लोग का वॉर चल रहा है. सपोज चाइना के साथ अभी हम लोग का वॉर चल रहा है. इन दिस पीरियड और मतलब चाइना के बीच और हम लोग के कंट्री के बीच क्या है? वॉर चल रहा है. ठीक है, तो अब चाइना इज आवर एलियन एलियन एनिमी. ठीक है, लेकिन अगर चाइना के साथ सब कुछ कंडीशन ठीक हो गया तो फिर से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, जिस पीरियड में हम लोग का वॉर चलेगा कोई भी कंट्री के साथ, कोई भी बाहर का देश के साथ, कोई भी बाहर का आदमी के साथ, that time we cannot go for a contract. Fine? Is it clear? ठीक है, अगर ऐसा है कि पहले हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, सपोज वी हैव गॉन थ्रू एन एग्रीमेंट अर्लियर with China or with some other country, okay, or with some other person, but now in this period they are our enemy. War is going on. So हम लोग क्या करेंगे? जो एग्रीमेंट किया था ठीक है, लेकिन वो एग्रीमेंट जो अभी है अभी नहीं चलेगा उस पीरियड में. उस पीरियड में वो बंद रहेगा एग्रीमेंट. जो एग्रीमेंट का जो प्रभाव है, द एग्रीमेंट विल नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ वॉर. इज इट क्लियर? कंट्रीज का भी हो सकता है, इंडिविजुअल का भी हो सकता है. हाँ, कैंसिल हो जाएगा. उस समय वो एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? जैसे मैंने कोई एग्रीमेंट किया है बाहर का आदमी के साथ, लेकिन बाहर का आदमी के साथ तो मैं एग्रीमेंट नहीं कर सकती, वो कंट्री होता है. ठीक है, बट अगर जैसे हम लोग अगर इफ आई वांट टू सेल अ प्रॉपर्टी, ऐसा हो सकता है, तो वो एग्रीमेंट जो आदमी खरीद लिया ना वो तो इंस्टेंट खरीदेगा ना, ऐसा नहीं है. तो वो कंट्री में होगा, नहीं तो कंपनी के बीच होगा, है ना, दो कंपनीज के बीच में. तो दैट टाइम जब वो चलेगा, वॉर चलेगा, तब तक वो रोका हुआ रहेगा. ओके, इट विल नॉट वर्क. यस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वो सब रुका हुआ रहेगा, वो कुछ नहीं चलेगा उस समय. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव. फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव मतलब फॉरेन का एम्बेसडर, फॉरेन का रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, कोई फॉरेनर के साथ, ठीक है, फॉरेन एम्बेसडर, तो उनके साथ हम लोग का क्या होता है? एग्रीमेंट नहीं हो सकता है. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, फाइन. नेक्स्ट वन, कंपनी और कॉरपोरेशन. अच्छा, कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, उस कंपनी का हमेशा क्या होता है? MOA रहता है. व्हाट इज कॉल्ड MOA? MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग से रहता है. तो कोई भी कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक है,
आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी क्या कर सकता है? कंपनी मेमोरेंडम के एसोसिएशन में अगर लिखा है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट यू कैन डू विद इन दिस रूल्स एंड रेगुलेशन, यस दैट कंपनी कैन गो फॉर दैट, बट मेमोरेंडम के बाहर जाके वो नहीं कर सकता है। ओके, मेमोरेंडम के बाहर जाके वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? एनी डाउट? फाइन। Now, artificial person, who is the artificial person? The company or the corporation. ठीक है, fine. Now, वो क्या, जैसे मतलब एक कंपनी है तो उसका तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, सो ही इज नॉट अ, दैट कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। वो क्या एक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नो। इज इट क्लियर ना? फाइन, एनी डाउट? सो beyond contract he cannot go, he has the limitations. Whose limitations? एक कंपनी का limitations है। ठीक है, मतलब एक जैसे एक इंडिविजुअल भी कंपनी के मतलब कंपनी का अगेंस्ट जाके वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, एनी डाउट you have? Please write it down. आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी को बोला गया है। कंपनी अगर नेचुरल पर्सन होगा तो कंपनी तो इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर होगा, तो वो मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया मैरिज का, तो कंपनी कांट गो फॉर अ मैरिज पर्पस ना, वो एक शादी में जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज दैट कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सन। फाइन, ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन and along with whatever example I have given, please note it down. Idiot means mental, lunatic मतलब physical। ठीक है, फिजिकल डिसेबलमेंट जिसका होता है दैट इज कॉल्ड। Why I am telling you to write it down? If you'll write it down, it will be much more clear. Okay? My online students, please note it down. Done, ma'am. Okay, fine. Very nice. Huh? আৰু বহাই দিম, ডাঙৰ কৰিম? You go for eye checkup immediately. हाँ, मैरिड वुमेन का मैंने बोला ना, जैसे मैं हूँ, आई एम अ मैरिड लेडी, आई एम अ मैरिड वुमेन, तो मेरा एक स्त्री धन, जैसे मैंने कुछ भी कोई भी फ्लैट खरीदा है, ओके, दैट इज माई ओन प्रॉपर्टी, आई हैव परचेज माई सेल्फ, ओके, तो उसमें मैं उसको मैं बेच भी सकती हूँ, वो आई कैन गो फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, ओके, आई कैन एंटर इन टू ए कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो मेरा हस्बैंड का प्रॉपर्टी है, सपोज मेरे हस्बैंड का कोई प्रॉपर्टी है, उसका उनका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, तो वो मैं खुद से सेल नहीं कर सकती हूँ, ओके, फॉर दैट आई कैन नॉट गो फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अपना जो स्त्री धन है उसके लिए मतलब उसका ही सिर्फ एक मैरिड वुमन हकदार है। ओके Ma'am, what is Tridhan? Stridhan means the property of a woman. Okay, खुद का प्रॉपर्टी, जैसे मैंने एक I have purchased a car, okay, that is my own property, मैंने खुद के पैसे से वो खरीदा है, मेरे पास कुछ गोल्ड है तो वो मेरा खुद का है, लेकिन जो मेरा हस्बैंड का प्रॉपर्टी है उसके ऊपर मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हूँ, आई कैन नॉट गो
for a contract. I cannot enter into a contract. लेकिन जो मेरा खुद का है, being a married woman, I am a working lady. If I have my own property, Sridhan, so for that I can go for a contract. I can enter into a contract. Okay? Yes, ma'am. ये इंसॉल्वेंट है, हाँ ठीक है, इसमें देखो दिस वन, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, दिस वन कन्विक्टेड, ओके, यस, এইটো है एग्जाम्पल, ठीक है से एग्जाम्पल मतलब क्या एक्स मैरिज माने আগতে আগৰ मैरिज কৰি থৈছে নেকি হা তাৰ মাথাতে আহিছে ভাল কথাটো मतलब सुनो company is an artificial person, okay, company is not a natural person, okay, a company cannot go for a marriage contract, understood? किरण का मुंह पे हंसी देखो, किरण डोंट फॉरगेट टू कॉल मी ओके ऑन योर मैरिज, हाँ ठीक है পঢ়ি আগতে CMA পাস কৰা নহলে পিটন লগাম মই CMA পাস নকৰিলে, ठीक है, हाँ मुझे 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 आई वॉज थिंकिंग दैट मैं ये लिख रही हूँ इसका पक्का कोई ना कोई तो पूछेगा ही, और मुझे डाउट था इस तुम्हारे बारे में ही एकदम मेरा मतलब इंट्यूशन पूरा एकदम सही निकला. ओके फिनिश्ड रिटन ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन. Yes, ma'am. ओके फाइन Yes, ma'am. ठीक है थैंक यू. ओहो क्या हुआ ये. ठीक है हाँ स्वा यू हैव टू गो फॉर आई चेकअप নহয় যাবা ইটস রিকোয়ার্ড ফর ইউ প্লিজ আই এম রিকোয়েস্টিং ইউ অল ইউ হ্যাভ টু গো ফর আই চেকআপ ইউ শুড গো অঁ গোটেইকেইটা একেলগত যাবাগে আই চেকআপৰ কাৰণে ঠিক আছে ओके अच्छा नाउ देखो मैं लेकिन सब पॉइंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द पॉइंट्स ठीक है नाउ आई एम इन कहाँ है हूँ खाली तुम लोग का मुझे टाइम मिल जाए मेरा वॉइड एंड वॉइडेबल तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना. मैं कहाँ पे हूँ आज पेज नंबर ठीक है. नाउ हियर यू सी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ठीक है. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. फाइन. सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या होता है और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है. चलो पढ़ते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट जनरली कम्स ओके. মানে এনেকুৱা আহিব তোমালোকক কিবা এটা কেছ দি দিব মানে কেছ টাইপ
जो दे देगा ना, एग्जाम्पल दे देगा, उसको तुमको समझना है कि ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है, ना सिर्फ ऑफर है. ओके, नाउ हियर यू सी, एक ऑफरर है, ठीक है, एक ऑफरर है. कौन ऑफरर है? किरण बन गया ऑफरर, रोहित बन गया ऑफरी, ठीक है, बना दिया मैंने. और ये कौन है? अच्छा, सुनो, तो किरण बन गया ऑफर. किरण के पास क्या है? एक हाउस है, ठीक है, किरण के पास एक अपना घर है, ठीक है, हाँ, बहुत सुंदर घर है, ब्यूटीफुल हाउस, ओके, अ डुप्लेक्स हाउस, ठीक है. किरण के पास, ही इज सो हैप्पी, सी. अच्छा, नाउ किरण 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को उसने अपना ऑफर किसको दिया? रोहित को दिया, ठीक है. रोहित इज द ऑफरी, ठीक है. तो किरण ने रोहित को ऑफर दिया. कैसे दिया ऑफर? लेटर से दिया, ठीक है, कि किरण ने बोला आई वांट टू सेल माई हाउस, सो विल यू परचेज इट. ओके, मतलब हाउस परचेज करने का ऑफर दिया, ठीक है, हाउस परचेज करने का ऑफर दिया. किसको दिया? रोहित को दिया. देखो, सुनो, लिसन केयरफुली, ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. तो रोहित ने तब क्या किया? रोहित को कब ये जो लेटर है, जो किसने भेजा? किरण ने भेजा. किरण इज द ऑफरर और रोहित इज द ऑफरी, ठीक है. ये हो गया किरण, ठीक है, हो गया, और ये हो गया रोहित. समझ में आ गया? ठीक है. नाउ अब किरण ने ऑफर दिया रोहित को, घर खरीदोगे क्या? मेरे पास एक घर है, डुप्लेक्स हाउस आई हैव, तो तुम क्या इंटरेस्टेड हो ये घर खरीदने के लिए, ठीक है. अब किरण ने तो लेटर लिखा. लिसन, किरण ने तो लेटर लिखा. जैसे कब लिखा? 1 अप्रैल को. 1 अप्रैल को उसने पोस्ट कर दिया, लेटर लिख के पोस्ट कर दिया, ठीक है. पोस्ट करने के बाद रोहित को कब मिला लेटर? 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल. 6 अप्रैल जैसे ही रोहित को लेटर मिलता है, जैसे ही रोहित को लेटर मिलता है, तो वो क्या बन गया? ऑफरी. और लेटर जब वो पढ़ा, खोल के जब पढ़ा, तो उस समय क्या हुआ? वो एक्सेप्टेंस हुआ, ठीक है, उस समय वो लेटर का एक्सेप्टेंस हुआ, ऑफर का एक्सेप्टेंस हुआ, ठीक है. अब जैसे ही ये क्या हुआ? हाँ, एटू বাইদেউ আপুনি ठीक है, ठीक है. ओके, अब क्या होगा? ऑफरी को कब लेटर मिला? 6 अप्रैल को. कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है. सपोज जैसे मैं हूँ दुलियाजान में, मैंने फ़ोन किया रोहित को. रोहित है गुवाहाटी में, ठीक है. मैंने रोहित को बोला कि मेरे पास एक घर है, तुम क्या उसको खरीदना चाहते हो? तो मैंने फ़ोन किया, आई हैव गिवन द ऑफर, ठीक है. और जब रोहित ने फ़ोन उठाया, फ़ोन उठाने के साथ जब उसने वो मेरा बात जब सुना, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सेप्टेंस, ठीक है. और वो कहाँ पे एक्सेप्टेंस हुआ? एक्सेप्टेंस कहाँ हुआ? जैसे वो गुवाहाटी में रहता है, तो ऑफर का एक्सेप्टेंस कहाँ हुआ? गुवाहाटी में. ऐसा नहीं है कि वो दुलियाजान में हो रहा है ऑफर. मैंने दुलियाजान में दिया ऑफर, दुलियाजान से बैठ के मैंने ऑफर दिया थ्रू फोन, ठीक है, समझ में आया. लेकिन रोहित कहाँ पे है? गुवाहाटी पे है. तो जब गुवाहाटी पे रोहित है, गुवाहाटी में है, तो उस ऑफर का एक्सेप्टेंस कहाँ हुआ?
गुवाहाटी में। समझ में आ गया ये? नाउ आफ्टर दैट तो रोहित क्या किया, वो जो पोस्ट मिला, ठीक है, उसका वो क्या करेगा, वो रिप्लाई करेगा, ठीक है। वो सोच लिया कि मैं खरीदूंगा, ठीक है, मैं खरीदूंगा। तो उसका जो ऑफर का रिप्लाई किस दिन किया, 16 अप्रैल को, ठीक है। जैसे ही वो लेटर का पोस्ट जो रिप्लाई है, वो रिप्लाई किसको दिया, नहीं, कि वो पोस्ट ऑफिस में जैसे ही वो सेंड कर दिया, उसके हाथ से रिप्लाई चला गया, उसके पास से रिप्लाई चला गया, तो वो बन गया क्या, कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? तब उनके बीच में क्या फॉर्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जितना देर तक उसने रिप्लाई नहीं दिया तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तब तक वो एक्सेप्टेंस था। जैसे ही वो रिप्लाई भेज दिया, उसके कंट्रोल में नहीं है रिप्लाई, दैट बिकेम द contract, that time, from that period, from that exact time it became the contract, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बना, जहां से पोस्ट किया, कहां से पोस्ट किया, गुवाहाटी से। किरण कहाँ पे है, दुलियाजान में, दुलियाजान से गुवाहाटी में भेजा लेटर। गुवाहाटी में किसने एक्सेप्ट किया, रोहित ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करके जैसे ही वो गुवाहाटी से अपना लेटर का रिप्लाई पोस्ट किया, उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एंड द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी गुवाहाटी, नॉट दुलियाजान। ओके, इज इट क्लियर? एनी डाउट? समझ में आया? अब सुनो, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, ठीक है। जैसे ही उसके बाहर, उसके हाथ से बाहर चला जाता है लेटर, दैट टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। अब बाय चांस उसका रिवोकेशन मतलब, रिवोक करना मतलब, हाँ, रिवोक करना मतलब, माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिवोक करना मतलब विड्रॉ करना, ठीक है, विड्रॉ करना। ओके, रिवोकेशन मीन्स विड्रॉ, ओके, ठीक है। नाउ सपोज किरण ने ऑफर किया था, क्या ऑफर किया था, हाउस। किरण ने बोला मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, उससे भी बड़ा एक घर मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो किरण ने रोहित को ऑफर दिया, है ना। तो रोहित ने जैसे ही उसका जो पोस्ट है, जो उसका रिप्लाई का पोस्ट है, वो पोस्ट करने ही वाला होता है, उसके पहले किरण ने सोचा मैं छोड़ो, मैं अपना घर नहीं बेचूंगा, यही घर मेरा सुंदर है, ओके। तो वो अपना ऑफर रिवोक करना चाहता है। तो उसने क्या किया, एक टेलीग्राम भेजा, ठीक है, टेलीग्राम भेजा। 16 अप्रैल को रोहित पोस्ट करने वाला था अपना रिप्लाई, तो उसके 16 अप्रैल के पहले अगर रिवोकेशन लेटर टेलीग्राम में मिल जाता है, किसको, रोहित को, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिवोकेशन हो जाएगा। वो जो ऑफर था वो विड्रॉ हो जाएगा, दैट विल बी कैंसल्ड। इज इट क्लियर? जब तक वो रिप्लाई नहीं भेजता। बाय चांस ऐसा हुआ, एक केस था, वहां पे क्या हुआ, रिवोकेशन लेटर, रिवोकेशन किस में भेजा, रिवोकेशन किस में भेजा, टेलीग्राम में भेजा, और लेटर वो पोस्ट करने ही वाला था, ठीक है, लेटर पोस्ट करने ही वाला था। जैसे 0.5 का डिफरेंस हो, तो आया ऐसा, दोनों एक ही साथ आया, मतलब पोस्ट भी करने वाला है उस तरफ, रिवोकेशन का लेटर भी आया, रिवोकेशन का टेलीग्राम आया। तो वो क्या किया, टेलीग्राम पढ़ दिया पहले, ठीक है। तो अगर टेलीग्राम पहले पढ़ दिया तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैंसल्ड, इट विल बी रिवोक्ड। इज इट क्लियर? ऑफर रिवोक्ड हो जाएगा, ठीक है, फाइन। टिल दिस मच एनी डाउट, एनी डाउट? यस माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? No, ma'am. फाइन, No, ma'am. ठीक है, No, ma'am. okay. Now next, see here,
अब ये रिप्लाई क्या हुआ, पोस्ट कर चुका, ठीक है। पोस्ट में अगर ऐसा हुआ, रिवोक हुआ, तो समझ में आ गया तुमको कैसा क्या होता है। सपोज उसने पोस्ट कर लिया अपना रिप्लाई, कौन पोस्ट कर दिया, रोहित ने, ठीक है। अभी वो किसके पास जाएगा, किरण के पास जाएगा, ठीक है, कि मैंने हाँ बोल दिया, यस आई एम गोइंग टू परचेज योर प्रॉपर्टी, परचेज योर हाउस, ठीक है। सो एक्सेप्टेंस, कौन एक्सेप्ट करेगा, किरण, किरण विल एक्सेप्ट दैट वन, ठीक है। अब किरण जिस दिन, जैसे 16 अप्रैल को पोस्ट किया तो वो 21 अप्रैल को पहुंचा, तो वो कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ। जिस दिन पहुंचा, दैट मीन्स दैट ऑफर, जो उसने ऑफर दिया ना, ऑफर दिया, फिर ऑफर ने एक्सेप्ट किया, अभी इसका भी रिप्लाई जा रहा है, तो ये बन गया एक्सेप्टेंस रिसीव। तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इज इट क्लियर, एनी डाउट, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक्सेप्टेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एक्सेप्टेंस, ठीक है। नाउ बाय चांस, सपोज, सोचो कि ऐसा होता है कि जो पोस्ट किया है, क्या पोस्ट किया है, रिप्लाई पोस्ट किया है, वो रॉन्ग एड्रेस दिया, रॉन्ग एड्रेस में रिप्लाई किया, ठीक है। हु हैज पोस्टेड इन अ रॉन्ग एड्रेस, द ऑफरी, मीन्स रोहित, रोहित सेंड his reply, okay, in a wrong address, to a wrong address, और वो wrong address कौन दिया था, किरण दिया था, ठीक है। तो किरण ने रॉन्ग एड्रेस दिया, वो तो किसका दोष है, ऑफरर का दोष है। कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है ऑलरेडी, क्योंकि पोस्ट हो गया, रिप्लाई पोस्ट कर दिया, जैसे ही रिप्लाई पोस्ट करता है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर। तो फिर भी अगर रॉन्ग एड्रेस दिया भी, उसके पास नहीं भी पहुंचा, फिर भी इट विल बी सेड एज दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इज इट क्लियर, सपोज, समझ में आया। और अगर जैसे पोस्टल में कभी कभी खो जाता है ना, खो जाता है ना, लॉस्ट इन ट्रांजिट, मतलब कहीं रास्ते में कहीं दूसरी जगह चला गया, बाय चांस, पोस्टल एड्रेस, मतलब पोस्टल कुछ कम्युनिकेशन के, मतलब ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो तभी भी क्या कहा जाएगा कि द कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इज इट क्लियर, एनी डाउट। अब सुनो, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कैसे होगा। जैसे एक्सेप्टेंस कौन करेगा, किरण। अब किरण क्या बोलना चाहता है, किरण का जैसे एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कैसे होता है, सोचो तो कैसे होगा। जैसे मैंने बोला कि इसका जो पोस्ट है, ऑफरर अगर सोचा कि नहीं मैं नहीं सेल करूंगा अपना हाउस को, तब वहाँ पे रिवोकेशन हो जाता है। अब ये जो ऑफरी है, ऑफरी की तरफ से कब रिवोकेशन होगा, एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन, मतलब ये तो पोस्ट कर लिया है ना, है ना, तो एक्सेप्टेंस रिसीव करने तक बाय चांस अगर उसके पहले वो टेलीग्राम भेज देता है कि नो आई एम नॉट गोइंग टू बाय योर प्रॉपर्टी, तो उसका रिवोक हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है, समझ में आया, एनी डाउट, एनी डाउट, ठीक है। मैम आपको पाइबल लिखे, हाँ हाँ हाँ, मैम वन मोर टाइम प्लीज, वन मोर टाइम, विच वन, मैम दिस ऑल, it is a lot of confusion like गुटे टू, oh मैम ये रिवोकेशन एजेंट है किरण, रिवोकेशन टू, रिवोकेशन माने जोड़ी याद स्वा। यहाँ पे देखो, जो ये पोस्ट करने वाला है, कौन पोस्ट करने वाला है, रिप्लाई कौन पोस्ट करने वाला है, हाँ, रोहित, ऑफरी, यस और नॉन, ऑफरी मतलब कौन, रोहित, है ना। किसके लिए क्या पोस्ट करने वाला है कि यस आई एम गोइंग टू परचेज योर हाउस, ठीक है। तो
अगर वो पोस्ट करने वाला है उसके पहले ही ऑफरर ने, किरण ने बोल दिया कि नहीं, मैं अपना घर को बेचना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू सेल माई हाउस, किरण ने अगर बोल दिया, टेलीग्राम मिल गया किसके पहले, पोस्ट जो लेटर है, जो रिप्लाई लेटर है, उसको पोस्ट करने के पहले टेलीग्राम से आ जाता है कि रिवोकेशन लेटर किसकी तरफ से, किरण की तरफ से, ऑफरर की तरफ से, देन इट विल बी रिवोक्ड। जो पहले आता है, और वी जनरली द पीपल वी ऑलवेज रीड द व्हाट, telegram first, because telegram is the important letter, means important message, urgent message, है ना। तो पहले हमेशा हम लोग टेलीग्राम ही पढ़ते हैं। समझ में आया? तो रिवोकेशन हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि एक्सेप्टेंस का रिवोक कैसे होने वाला है, एक्सेप्टेंस का रिवोक जैसे ही, एक्सेप्टेंस का रिवोक कैसे होने वाला है, एक्सेप्टेंस का रिवोक कैसे होने वाला है, पोस्ट रिप्लाई किया, रिप्लाई करने के पहले जो एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करेंगे, उसने पहले ही एक्सेप्ट नहीं करने के पहले ही वो भेज दिया रिवोकेशन लेटर, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी रिवोक्ड। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Now it's clear. ठीक है। रिवोकेशन मतलब कैंसिलेशन, मीन्स विड्रॉ। तुम जो अपना प्रपोजल दिए हो ना, जो अपना ऑफर दिए हो ना, उससे विड्रॉ कर जाना, उससे पीछे हट जाना। ठीक है, इज इट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। गुड। रिवोकेशन अलाउड, ए टू ए रिवोकेशन अलाउड, मतलब रिवोकेशन हुआ है, होल रिवोकेशन होल, और अलाउड लिखिसो। सो एटू लिखी दिया तुम्हारे टेलीग्राम इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, यस और नॉट? इन बिटवीन लेटर एंड टेलीग्राम यू विल सिलेक्ट फर्स्ट द टेलीग्राम। So generally for revocation we send it through the telegram only. ठीक है? Letter accept करार आगोटे जुड़ी telegram पाए जाए, then you will select the revocation one. और अगर revocation के पहले ही reply post हो चुका है, then the contract has been formed already. You cannot revoke. You cannot revoke. Is it clear? Clear? Yes, ma'am. हाँ वही तो, टेलीग्राम अगर बाद में पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तब वो रिवोक नहीं होगा। नहीं सर, उसको करना पड़ेगा बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया है। अगर ऐसा हुआ तो जो भी पहले देखा वही एक्सेप्टेबल। टेलीग्राम जैसे इग्नोर किया, टेलीग्राम नहीं देखा, ठीक है, लेटर पहले वो एक्सेप्ट कर लिया, तो वो ना पीरियड जो टाइम है ना, टाइम में देखना पड़ेगा कि कौन सा टाइम में वो भेजा। इफ़ ही हैज़ नॉट सीन द टेलीग्राम, ही डिड नॉट गेट द टेलीग्राम। अगर वो जैसे टेलीग्राम, जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे तुम्हारा ये लेटर भी गया, ठीक है, और टेलीग्राम भी गया, ठीक है, टेलीग्राम भी गया, लेटर भी गया, साथ ही साथ है, ठीक है। लेकिन अगर कोई आदमी अगर लेटर सिलेक्ट नहीं करके, ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू सिलेक्ट द टेलीग्राम।
क्योंकि टेलीग्राम एक ऐसा ये चीज़ है जो दिस इज कॉल्ड द इमरजेंसी. हो सकता है किसी दूसरा का भी कुछ टेलीग्राम हो सकता है. टेलीग्राम ये हम लोग का जनरल ये है सेंस ऑफ ह्यूमर है कि वी विल फर्स्ट रीड द टेलीग्राम. ठीक है, ऐसा हो सकता है आजकल तो फैक्स होता है, इंटरनेट है, तो कोई भी मतलब जो भी चीज़ पहले लेगा एक्सेप्ट लेगा वही होगा. ठीक है, this is called Guwahati. Okay, I have written GHT. कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड द कंट्रोल, मतलब अगर वो पोस्ट हो गया तो वो बियॉन्ड द कंट्रोल हो गया, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही. एट एनी कॉस्ट इट विल बी फॉर्म्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैंने पोस्ट कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया मतलब. ठीक है, क्लियर मुझे पला. হ্যাঁ, ওই যে হলুদগুলি রাখা হয় না, হলুদগুলি রাখা হয়েছে, ওটার পিছন থেকে ফালা. Mute your sound, please. Mute your audio. Okay. Shall I go to the next topic? Now, I will go to the बोलो. हाँ होगा, बुक से मतलब बुक में थोड़ा ये है. हाँ हाँ, लेकिन बुक का जो लास्ट वाला जो क्वेश्चंस है दैट वन मकअप कर लो. हाँ यहाँ से पढ़ लो, हो जाएगा. थोड़ा तो पढ़ो, हाँ थोड़ा पढ़ो, थोड़ा नहीं 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 होगा. इसलिए तो यहाँ पे बहुत ये करके, इसलिए तो मैंने लास्ट ईयर ही बोला है कि इसको मैंने, ताकि मैं मतलब ये करके मैं छान छान के मैं इसको बनाई ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो पजल हो जाओगे. कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो ना प्लीज. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, कंसिडरेशन, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन. कंसिडरेशन, ओ हाँ मैं तुम लोग को भेज दूंगी. हाँ मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करना बा. कोई रोहित इन लोग का जो आ रहा है ना, एक ग्रुप बना देना. ठीक है, तुम लोग जो प्रेजेंट हो उसका एक ग्रुप. पिছত छापा मुखन. হ'ব এতিয়া চোৱা, এটা গ্ৰুপ, एक ग्रुप बना लो. जो तुम लोग क्लास अटेंड कर रहे हो प्लीज मेक वन ग्रुप. Those students who are attending the classes regularly, only to those students only I will send the note. Because if anyone is not attending and I have prepared myself all these notes, so what is the use of that? Okay? Now, chalo, legal, इसमें भी spelling mistake. Oh, where it is? Keyhole. Now this one. ठीक है? Legal rules relating to consideration. Now what is called consideration?
कंसिडरेशन क्या हुआ? कंसिडरेशन का मतलब क्या है? क्या कुछ देना था? जैसे एग्जाम्पल, I went to a shop, okay? I have given offer to the shopkeeper that can I get a bourbon biscuit from your shop? Okay, because this is my favorite biscuit. Okay, तो मुझे बार्बन बिस्किट चाहिए एक, आपकी दुकान पे मिलेगा? मैंने ऑफर दिया, ठीक है? तो उसने क्या किया? एक्सेप्ट किया। किसने एक्सेप्ट किया? द शॉपकीपर। उसने बोला यस मैम, डेफिनेटली यू विल गेट अ बार्बन बिस्किट। तो उसने मुझे क्या दिया? बार्बन बिस्किट दिया। आई गॉट द बार्बन बिस्किट। इंस्टीड ऑफ दैट आई हैव गिवन द अमाउंट ऑफ मनी। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी? जैसे उसका 59 हुआ, 60 रुपीज़ हुआ, तो मैंने वो अमाउंट दिया। तो लेना देना हुआ या नहीं? है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वैल्यूलेस नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने उससे बिस्किट दिया, वो मेरा काम का चीज़ है, बिस्किट मुझे खाना है, और उसको पैसा चाहिए था तो पैसा दिया। समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. नाउ कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। अब प्रॉमिसर कौन है? पिटाई दूंगी मैं अभी नहीं जानने से। प्रॉमिसर कौन है? एक्सेप्ट करता है मैम। प्रॉमिसर कौन है? कौन है? हु इज द प्रॉमिसर? फड़ी फड़ी। प्रॉमिसर कौन है? जो प्रॉमिस करता है, जो एक्सेप्ट करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द प्रॉमिसर, है ना? तो उसको बोलो ना, जो प्रॉमिस करता है उसको प्रॉमिसर। और प्रॉमिसी कौन हो गया? हाँ, जिससे वो प्रॉमिस कर रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। समझ में आया? ऑफरर मतलब, ठीक है? मैंने प्रॉमिस किया तुमको कि मैं किरण, देखो अगर तुम लोग अच्छा से रिजल्ट करोगे तो मैं तुम लोग को पार्टी दूंगी, श्योर, डेफिनेटली आई विल गिव यू। अगर तुम लोग अच्छा से रिजल्ट करोगे, फाउंडेशन में अच्छा परसेंटेज लाओगे लॉ में, तो आई विल डेफिनेटली गिव यू अ पार्टी, आई विल थ्रो अ पार्टी, ठीक है? दिस इज माई प्रॉमिस, सो आई एम द प्रॉमिसर, और तुम लोग क्या हो? प्रॉमिसी। समझ में आ गया? हाँ, लेकिन मैं पार्टी दूंगी, मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है? आई नीड अ रिजल्ट बिकॉज अरे कंसिडरेशन कैसे हुआ उसमें उसको हाँ, एक हाथ से लो, एक हाथ से दो, ठीक है? लेकिन समथिंग वैल्यूएबल, सो रिजल्ट इज ऑल्सो वैल्यूएबल, यस और नॉट? देखो मैम ने प्रॉमिस किया, यस माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू ऑल्सो लिसन, देन मैम तभी पार्टी देती है जब मैम को रिजल्ट मिलता है अच्छा, ओके? मैम ये एग्जांपल में लिख दो। यस डेफिनेटली यू कैन राइट, ठीक है? नाउ कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, ठीक है? अब इसमें ना थोड़ा तुम लोग को दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है तो ये देखो, एक कलेक्टर है, मैं एक एग्जांपल, ये केस लॉ है, ठीक है? दिस इज वन ऑफ वेरी फेमस केस लॉ। एक कलेक्टर है, कलेक्टर आपको पता है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, ठीक है? तो कलेक्टर है, कलेक्टर ने किसको रिक्वेस्ट किया? कॉन्ट्रैक्टर को रिक्वेस्ट किया, ठीक है? कलेक्टर ने किसको रिक्वेस्ट किया? कॉन्ट्रैक्टर। अभी कलेक्टर बन गया रोहित, ठीक है? और राज बन गया कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है? कलेक्टर है, ये है, और राज है कॉन्ट्रैक्टर। तो कलेक्टर ने, रोहित ने राज को रिक्वेस्ट किया, राज इज अ कॉन्ट्रैक्टर, राज को बोला कि देखो भाई, मुझे एक मार्केट चाहिए, मैं चाहता हूं कि इस जगह में एक मार्केट बने, ठीक है? तो तब अब राज तो मना नहीं कर सकता है, द कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट डिनाई,
he is so happy that the collector, district collector came to me and he has requested me to yes, to build a market. ठीक है, to prepare a market means एक market को बनाओ, to make a market. ठीक है, एक market बनाओ, construct करो, एक market construct करो. तो he is now happy. कौन happy? Contractor is happy. Contractor कौन है? राज है. ठीक है, अब किरण नहीं है, अब राज है क्या? ठीक है. किरण को भी मैं बनाऊंगा. ठीक है, अब देखो, कॉन्ट्रैक्टर जब मार्केट कंस्ट्रक्ट कर रहा था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर जब मार्केट कंस्ट्रक्ट कर रहा था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर जब मार्केट कंस्ट्रक्ट कर रहा था, उसी बीच जो मार्केट में एक शॉप्स रहेंगे ना, मार्केट के अंदर तो शॉप्स रहेंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स रहेंगे, तो वहाँ पे जो शॉप्स रहेंगे, उसी एक शॉप का एक शॉपकीपर किसके पास आया? The shopkeeper came to the contractor. ठीक है, समझ में आया? शॉपकीपर किसके पास गया? कॉन्ट्रैक्टर के पास. कॉन्ट्रैक्टर कौन है? राज. शॉपकीपर कौन है? किरण. ठीक है, ओके. शॉपकीपर कौन है? किरण. तो अब किरण गया किसके पास? दौड़ दौड़ के गया. किसके पास गया? राज के पास. राज कौन है? कॉन्ट्रैक्टर. बोला चलो कॉन्ट्रैक्टर भैया, आपको एक रिक्वेस्ट मेरे मतलब एक प्रॉमिस करना पड़ेगा मुझे. बोला क्या प्रॉमिस? बोला कि आप मेरे मतलब मैं जैसा चाहता हूँ, इट्स माई डिज़ायर, इट्स माई विश दैट यू प्रिपेयर अ मार्केट, यू कंस्ट्रक्ट अ मार्केट whose size and shape will be according to me, according to my choice. ठीक है, आप कंस्ट्रक्ट करो मार्केट वो, और मैं जैसा कहता हूँ उस तरह का मार्केट आप कंस्ट्रक्ट करो, उस तरह का मार्केट आप बनाओ. उसके अंदर जो शॉप्स होंगे वो मैं जैसा आपको कहता हूँ उसी तरह का शॉप्स बनाओ. ठीक है, किसको बोला? कॉन्ट्रैक्टर को. तो कॉन्ट्रैक्टर बोला ठीक है मैं बना दूंगा, और मुझे क्या मिलेगा? मुझे आपको क्या मिलेगा? आपको राज बोलता है किसको? किरण को, कि देखो अगर मैं तुम्हारा बात सुन के अगर मैं बना दिया, क्या बना दिया? शॉप्स बना दिया, मार्केट कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो तुम मुझे क्या दोगे? बोला मैं आपको अपना जो सेल होगा ना, जो मेरा शॉप से सेल होगा, उससे जो कमीशन, उसका कमीशन आधा % मैं आपको दूंगा. उससे जो मुझे प्रॉफिट होगा उसका कमीशन मैं आपको दूंगा. बड़ा खुश हो गया. कौन खुश हो गया? राज खुश हो गया. राज कौन था? कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर वाज वेरी हैप्पी. ओके, आफ्टर दैट द मार्केट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन हुज चॉइस? किरण's चॉइस. लेकिन रिक्वेस्ट कौन किया था पहले? कलेक्टर. कलेक्टर अगर रिक्वेस्ट नहीं करता तो मार्केट बन सकता? नहीं बन सकता. ठीक है, तो अब जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? राज है. कॉन्ट्रैक्टर ने क्लेम किया अमाउंट. किससे क्लेम किया? किरण से. किरण बोला चलो चलो मैं नहीं देने वाला हूँ पैसा, और ठीक है मैं नहीं देने वाला हूँ. तो ये तो गुस्सा हो गया. कौन गुस्सा हो गया? कॉन्ट्रैक्टर गुस्सा हो गया. तो कॉन्ट्रैक्टर चला गया कहाँ पे? हाँ, कोर्ट में. ठीक है, कोर्ट में जाके उसने एक केस फाइल कर दिया अगेंस्ट द किरण, अगेंस्ट द शॉपकीपर. ठीक है, दैट ही सेड मी, ही प्रॉमिस्ड मी दैट ही विल पे द कमीशन फ्रॉम हिज सेल, बट ही हैज डिनाइड नाउ. आई हैव क्लेम्ड टू हिम बट ही हैज डिनाइड. तो कोर्ट ने क्या दिया? जजमेंट क्या सुनाया? कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाया कि ये मार्केट किसके रिक्वेस्ट पे बना था? कलेक्टर. कलेक्टर इज द क्या है? कलेक्टर इज द कलेक्टर ओनर नहीं है. कलेक्टर क्या है? डिजायर ऑफ द कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, है ना.
प्रॉमिस कौन किया था? प्रॉमिस कौन किया था? कॉन्ट्रैक्टर ने प्रॉमिस किया। किससे प्रॉमिस किया? कलेक्टर से, ठीक है ना? तो कलेक्टर के रिक्वेस्ट से ही ये बना, थोड़े ही ये शॉपकीपर के ये से बना है ना? लेकिन शॉपकीपर क्या होता है? शॉपकीपर ने क्या बोला था कि तुम क्या, कॉन्ट्रैक्टर को क्या बोला था कि तुम मेरे हिसाब से बनाओ तो मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, है ना? तो अब इसमें क्या होगा? इसमें कमीशन मिलेगा? हाँ, कमीशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। कौन बोला था तुमको उसका बात सुनने से? वो तो मेन नहीं है। मेन तो कौन है? कलेक्टर है। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, एनी डाउट? ठीक है मैम हाँ, मैम उसको वो कमीशन नहीं मिला, मतलब वो समझ नहीं आया। कमीशन व्हाई ही डिड नॉट रिसीव? कमीशन क्यों, कैसे रिसीव करेगा? कमीशन कैसे रिसीव करेगा? थोड़े ही उसको मतलब एक्चुअली द मार्केट हैज बीन मेड ऑन हुज रिक्वेस्ट? कलेक्टर। कलेक्टर्स रिक्वेस्ट। तो कलेक्टर के रिक्वेस्ट पे मार्केट बना ना, थोड़े ही उसके ऊपर बना। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? मेन, हु इज द मेन पर्सन? कलेक्टर। यस, सो दैट्स व्हाई कोर्ट ने ये डिनाई किया कि ये तुम क्लेम नहीं कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, मतलब कंसिडरेशन जो है वो थर्ड पार्टी से आप कंसिडरेशन नहीं ले सकते हो। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आया? ठीक है, यस मैम। समझ में आया? थर्ड पार्टी से आप वो कंसिडरेशन नहीं ले सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब ये तो ठीक है, लेकिन जो आप कंसिडरेशन हो, जैसे लेन देन का बात है ना, वो तो आप किसने रिक्वेस्ट किया था तभी आप जाके बनाया ना? कलेक्टर ने रिक्वेस्ट किया तब जाके मार्केट बना। थोड़े ही थर्ड पार्टी वो शॉपकीपर आके बोला और आप बना दिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? सो यू कैनॉट गो फॉर क्लेमिंग एनीथिंग फ्रॉम द थर्ड पार्टी। ओके, there will be no consideration. Is it clear? Is it clear, my online Yes, ma'am. students? यस मैम। Any doubt? नो मैम। जैसे मैं और एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे क्या एग्जांपल दूँ? मैं नाहरगेटिया जा रही थी। On the way, I was going to Nahargetia. From Duliajan to Nahargetia I am going. I was going. तो बीच में, रास्ते में मैंने देखा कि एक लड़का नदी में डूब रहा है। एक लड़का नदी में डूब रहा है, ठीक है? उसने मुझसे कुछ भी हेल्प नहीं मांगा, ठीक है? सिर्फ बोल रहा था कि कोई हेल्प करो, ठीक है? तो मैं जाके उसको बचाया। तो मैं क्या उससे क्लेम करूंगा कि मैंने तुमको बचाया तो तुम मुझे दो पैसा? आई कैन नॉट क्लेम, है ना? समझ में आया? वहाँ पे प्रॉमिस नहीं होता है, वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। ऐसा कंसिडरेशन क्या है? कुछ वैल्यूएबल, समथिंग अमाउंट, मतलब ऐसा है कि आपने वहाँ पे प्रॉमिस होना पड़ेगा, ठीक है? इज इट क्लियर नाउ? We cannot take any consideration from the third party. Is it clear? यस मैम। जो हम लोग ने सोचा ही नहीं है, कोई दूसरा एक स्ट्रेंजर आ गया और उससे हम लोग ने, ऐसा तो नहीं, we cannot take ना। समझ में आया? जैसे मेरे नेबरहुड में
किसी के घर के सामने और एक घर था, उस घर में आग लग गया। आग लग गया तो मैंने जाके, जहाँ पे आग लग गया, जिस घर में आग लगा उसमें कुछ लोग फंसे हुए थे, तो मैंने अपने नेबर्स को निकाला उस घर से। तो मैं जाके बोलूँगी आपको मैंने बचाया, देखो देखो मैंने बचाया आपको, आप मुझे पैसा दो। आई कैन नॉट आस्क फॉर दैट, आई कैन नॉट टेक कंसिडरेशन। इज इट क्लियर नाउ कि उसको मैंने बचाया? नहीं, दिस इज नो। समझ में आ गया? एनी डाउट? एनी डाउट? नो मैम। No, ma'am. हाँ बोलो ना, कौन सा? हाँ, अब देखना, रुको, अब नेक्स्ट वाला। यस, okay, here you see. Next one, consideration may move from the promisee or any other person. Consideration may move from the promisee or any other person. ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक केस लॉ है, ये एक ओल्ड लेडी है, ये एक ओल्ड लेडी है, ठीक है? ओल्ड लेडी के पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? ओल्ड लेडी ने उस प्रॉपर्टी को अपने बेटी के पास, अपने बेटी को गिफ्ट कर दिया, ओके? अ ओल्ड लेडी हैज गिफ्टेड हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर, ठीक है? अब उसके बदले में इंस्टेड ऑफ दैट शी टोल्ड हर डॉटर, हु टोल्ड? द ओल्ड लेडी। उसने अपनी बेटी को बोला कि तुमको एक एग्रीमेंट करना है, दैट यू हैव टू लुक आफ्टर योर आंट, यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल लुक आफ्टर योर आंट, ओके? तुम अपने आंट को एवरी मंथ मेंटेनेंस भेजना है, एवरी मंथ यू हैव टू पे अ अमाउंट, ठीक है? एन्युइटी तुमको देना है, ठीक है? समझ में आया? तुमको कुछ पैसा भेजना है एवरी मंथ, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? अब डॉटर एग्री भी हो गया। डॉटर ने क्या किया? एक रिटन फॉर्मेट में वो अपना क्या किया? शी प्रॉमिस्ड दैट यस आई विल लुक आफ्टर माई आंट, आई विल पे द एन्युइटी एवरी मंथ टू माई आंट, ठीक है? तो जो ये आंट है, थोड़े दिन तक तो क्या हो रहा था? वो पे कर रहा था। कौन पे कर रहा था? डॉटर। कुछ दिनों के बाद उसने छोड़ दिया आंट को पे करना, ठीक है? आंट को पे करना छोड़ दिया, ठीक है? अब आंट क्या किया? आंट क्या किया? कहाँ पे गया? लीगल रेमेडी, कोर्ट में गया कि ऐसा तो प्रॉमिस किया था, लेकिन वो तो मुझे पे नहीं कर रही है, शी इज़ नॉट पेइंग द एन्युइटी, ठीक है? तो जो डॉटर है उसने क्या बोला कि मेरे मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था, ठीक है? मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था, हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन मैंने सोचा अभी उसका ज़रूरत नहीं है तो आई रिफ्यूज़ टू पे, है ना? तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, क्या जजमेंट दिया कि नो, यू हैव टू पे द अमाउंट, पे द एन्युइटी टू योर आंट। क्यों? क्यों? किसने प्रॉमिस किया था? प्रॉमिसर कौन है? डॉटर। और प्रॉमिसी कौन है? आंट, ठीक है? तो आंट किसके बिहाफ में ले रहा था? ओल्ड लेडी के बिहाफ में, ठीक है? ठीक है, समझ में आया? तो वो ऐसा भी है कि अगर ऐसा है कि डॉटर मना भी कर सकता है और डॉटर को देना भी पड़ सकता है।
दैट इज मतलब कोर्ट ने ऐसा जब बोला कि तुमने जब प्रॉमिस किया था सो यू हैव टू पे दैट वन, ठीक है, क्योंकि तुमने ओल्ड लेडी ने तुमको उसके बदले कंसिडरेशन दिया. क्या कंसिडरेशन दिया? प्रॉपर्टी. तो मैंने तुमको प्रॉपर्टी दिया तो तुम मेरे लिए करो, मैं नहीं हूं तो मेरे सिस्टर को तुमको देना है. अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन. ठीक है? इज इट क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? नो मैम. You have understood this one? Now next one. Go. ये क्या हुआ? नहीं जा रहा. Why it is not moving? Huh? Why it is not coming? Oh yes, I think now it will come. Yes. Okay, now consideration may be present or future. अच्छा, past consideration जैसे जैसे कोई भी टीचर, ठीक है, पढ़ा रहा है, पास्ट कंसिडरेशन क्या होगा यहाँ पे? जैसे मैं एक टीचर हूँ, ट्यूटर हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को मैंने जैसे अभी क्या मंथ चल रहा है? अप्रैल ना मई. अप्रैल में मैंने पढ़ाया 1 month आई हैव टेकन ट्यूशन, ओके, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया. तो नाउ पास्ट कंसिडरेशन के मतलब मैंने जो वो पढ़ाया उसके लिए मैंने जो पास्ट में जो पढ़ाया 1 month बिफोर, उसके लिए मैं क्या लूँगी? नेक्स्ट मंथ अमाउंट, फीस. अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड पास्ट कंसिडरेशन. बेस्ड ऑन पास्ट कंसिडरेशन आई विल टेक द अमाउंट. इज इट क्लियर? सेकेंड वन, प्रेजेंट कंसिडरेशन. बोलो. हाँ, अच्छा जो অকমান শুনিব নোৱাৰিবা? 5 মিনিট শুনিব পাৰিবা? পাৰিবা? অঁ অঁ হ'ব, অকমান শুনি লোৱা, দুটা আছে আৰু. হা, হৈ যাব এইটোৱে. প্ৰেজেণ্ট কনচিডাৰেশ্যন. প্ৰেজেণ্ট কনচিডাৰেশ্যন মিনছ ওৱান ছাইড পাৰফৰ্মেঞ্চ ডান. ওৱান ছাইড পাৰফৰ্মেঞ্চ ডান. ओके, अदर साइड द परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग. अदर साइड द परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग मतलब एक साइड में परफॉर्मेंस हुआ. जैसे मैंने अमेज़न में, ठीक है, मैंने अमेज़न में 20,000 का मोबाइल ऑफर दिया है ना. मैंने क्या दिया? 20,000 का मोबाइल मैंने ऑफर दिया है ना. तो जो अदर पार्टी है, जो अमेज़न पार्टी है, उसने क्या किया? एक्सेप्ट किया. फिर मैंने क्या किया? पेमेंट कर दिया. आई हैव डन माई पेमेंट. नाउ दे हैव टू गिव मी द मोबाइल. आई नीड द मोबाइल. तो मेरे साइड से परफॉर्मेंस हो गया, क्लियर है. अदर साइड द परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग, पेंडिंग. तो वो जब मेरे मतलब मुझे जब मोबाइल देगा तभी वो कंप्लीट कंसिडरेशन मतलब प्रेजेंट कंसिडरेशन इसको ही बोलते हैं. जो आगे मतलब एक पार्टी का परफॉर्मेंस क्या होता है बट दूसरे जो साइड का पार्टी है उसका परफॉर्मेंस पेंडिंग रहता है, नहीं तो आउटस्टैंडिंग रहता है. इज इट क्लियर नाउ? ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज कॉल्ड, ठीक है. एंड द अदर साइड द फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है, फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या होगा? फ्यूचर परफॉर्मेंस, कैन यू गिव मी वन एग्जांपल? फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होगा? एडवांस पेमेंट है.
फ्यूचर कंसिडरेशन एग्जाम्पल, मैंने ऑर्डर दिया अमेज़न में, ठीक है, मैंने ऑर्डर दिया अमेज़न में, मुझे चाहिए, क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए 20,000 का। अब मैंने पेमेंट नहीं किया है, मैंने कैश ऑन डिलीवरी लिखा है, व्हाट आई हैव क्लिक्ड, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। अब उस तरफ से भी आउटस्टैंडिंग है, इस तरफ से भी आउटस्टैंडिंग है, जब मोबाइल आएगा मैं पैसा दूंगी, ठीक है। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड द फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर कंसिडरेशन, ओके। फ्यूचर कंसिडरेशन में क्या है, होता है, दोनों साइड से परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है और पेंडिंग है, ठीक है। एक को पैसा देना है, एक को प्रोडक्ट देना है। इज इट क्लियर नाउ? एनी डाउट? Any doubt, my online students? No, ma'am. Okay, thank you. So here today I am concluding the class. Fine? Thank you, one and all. Thank you, ma'am.